To watch this topic in Hindi, skip the video to 3 minutes and 12 seconds. Hello everyone, welcome to another episode of Legal Update. The topic of discussion is SC rules on coconut oil packaging. First, let us see why is it in the news. Recently, in the Commissioner of Central Excise Salem versus Messrs Madan Agro Industries Private Limited case, the Supreme Court deliberated on whether pure coconut oil sold in small quantities should be classified as edible oil or hair oil under the Central Excise Tariff Act. Let's now discuss the background of the case. A 15-year-old case began with revenue authorities challenging a 2008 CESTAT ruling that classified small pack coconut oil as edible oil, impacting Rs 159 crores in revenues and penalties. In 2009, 8 appeals were filed in the Supreme Court against Marico Limited and its job workers, alleging that small pack coconut oil should be classified as hair oil under heading 3305. The tribunal ruled in favor of Marico and its job workers, rejecting the revenue authorities' claims, leading the department to appeal to the Supreme Court. In 2018, a split verdict by a 2-judge bench resulted in Justice Gogoi classifying small pack coconut oil as edible oil, while Justice Bhanumati classified it as hair oil, prompting a 3-judge bench reference. The court observation was as follows. The bench, comprising CJI Sanjeev Khanna, Justice Sanjay Kumar, and Justice R. Mahadevan, held that coconut oil would be classified as edible oil under heading 1513 unless its packaging explicitly met the requirements for classification as hair oil under heading 3305 of the Central Excise Tariff Act 1985. The court also observed that packaging alone, like smaller containers, is insufficient to classify coconut oil as a cosmetic product without clear indicators such as labels specifying its use as hair oil. Let's know more about the Central Excise Tariff Act 1985. It provides a framework for levying duties on goods imported into or exported out of India. The Act categorizes goods under specific headings and subheadings in its tariff schedule, which determines the applicable customs duties. Heading 1513 under Chapter 15 of the Act covers edible oils, including coconut oil. Heading 3305 under Chapter 33 of the Act covers cosmetics, including hair oils. Let's now discuss case laws related to it. Meghdut Gramodyog Seva Sansthan UP versus Commissioner of Central Excise Lucknow. In this case, the court held that packaging or branding is not determinative of classification. Instead, the product's composition and intended use are key factors. Before we wrap up, here's a question for you. Under which heading is coconut oil classified as edible oil in the Central Excise Tariff Act 3303, 1513, 3005 or 3305? Send the answer to this question in the comment section. Like, share and subscribe for more such content. नमस्कार, लीगल अपडेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है नारियल तेल की पैकेजिंग पर सुप्रीम कोर्ट के नियम। सबसे पहले जान लेते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में सेलम के केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम मेसर्स मधान एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर विचार विमर्श किया कि क्या छोटी मात्रा में बेचे जाने वाले शुद्ध नारियल तेल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत खाद्य तेल या बालों के तेल के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। चलिए जान लेते हैं मामले की पृष्ठभूमि। 15 वर्ष पुराना मामला राजस्व अधिकारियों द्वारा 2008 के CESTAT के फैसले को चुनौती देने से शुरू हुआ, जिसमें छोटे पैक वाले नारियल तेल को खाद्य तेल के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिससे राजस्व और जुर्माने पर 159 करोड़ रुपए का असर पड़ा। 2009 में मैरिको लिमिटेड और उसके जॉब वर्कर्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 8 अपीलें दायर की गईं, जिनमें आरोप लगाया गया कि छोटे पैक वाले नारियल तेल को शीर्षक 3305 के अंतर्गत बालों के तेल के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। न्यायाधिकरण ने मैरिको और उसके जॉब वर्कर्स के पक्ष में फैसला सुनाया और राजस्व अधिकारियों के दावों को खारिज कर दिया, जिसके कारण विभाग को सर्वोच्च न्यायालय में अपील करनी पड़ी। 2018 में 2 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा लिए गए विभाजित फैसले के परिणाम स्वरूप न्यायमूर्ति गोगोई ने छोटे पैक वाले नारियल तेल को खाद्य तेल के रूप में वर्गीकृत किया, जबकि न्यायमूर्ति भानुमति ने इसे बालों के तेल के रूप में वर्गीकृत किया, जिसके बाद 3 न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले को संदर्भित किया। न्यायालय की टिप्पणी की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्तियों आर महादेवन की पीठ ने कहा कि नारियल तेल को शीर्षक 1513 के तहत खाद्य तेल के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जब तक कि इसकी पैकेजिंग केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1985 के शीर्षक
3305 के तहत बालों के तेल के रूप में वर्गीकरण की आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से पूरा नहीं करती। अदालत ने यह भी कहा कि केवल पैकेजिंग जैसे कि छोटे कंटेनर नारियल तेल को कॉस्मेटिक उत्पाद के रूप में वर्गीकृत करने के लिए अपर्याप्त हैं, क्योंकि इसमें स्पष्ट संकेतक जैसे कि लेबल बालों के तेल के रूप में इसके उपयोग को निर्दिष्ट करते हैं। आइए अब जान लेते हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1985 के बारे में। यह भारत में आयातित या भारत से निर्यातित वस्तुओं पर शुल्क लगाने की रूपरेखा प्रदान करता है। अधिनियम अपने टैरिफ अनुसूची में विशिष्ट शीर्षकों और उपशीर्षकों के अंतर्गत वस्तुओं को वर्गीकृत करता है, जो लागू सीमा शुल्क निर्धारित करता है। अधिनियम के अध्याय 15 के अंतर्गत शीर्षक 1513 में नारियल तेल सहित खाद्य तेल शामिल है। अधिनियम के अध्याय 33 के अंतर्गत शीर्षक 3305 में बाल तेलों सहित सौंदर्य प्रसाधन शामिल हैं। चलिए अब जान लेते हैं इससे संबंधित एक केस के बारे में। मेघदूत ग्रामोद्योग सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त लखनऊ। इस मामले में न्यायालय ने माना कि पैकेजिंग या ब्रांडिंग जैसे लहराते बालों वाली महिला को दिखाना वर्गीकरण का निर्धारण नहीं करती है। इसके बजाय उत्पाद की संरचना और इच्छित उपयोग मुख्य कारक हैं। आइए अब नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम में नारियल तेल को किस शीर्षक के अंतर्गत खाद्य तेल के रूप में वर्गीकृत किया गया है? 3303, 1513, 3005 या 3305? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।